السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین، صدق اللہ مولانا عظیم وصدق اللہ رسول النبی المبین الکریم۔ بعد توحید مقرر شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے نقش قدم پر چلنے والوں، آگے سب سے پہلے آقا ایماندار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ رسالت میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھی ہے بابا زبلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آخر زبان دیا نا کس کی صدقے میں، تو کیا فرما رہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا، دینے والا سچا، دینے والا سچا، محبوب کی محفل محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جسے، آتے ہیں وہی جسے، آتے ہیں وہی جسے، آتے ہیں وہی جسے، سب مل کے بولے آتے ہیں وہی جسے آقا بلاتے ہیں، جسے سرکار بلاتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لائے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ دیواروں در سجاوٹ سرکار آ رہے ہیں، دیواروں در سجاوٹ سرکار آ رہے ہیں، مل کے خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، دیواروں در سجاوٹ سرکار آ رہے ہیں، مل کے خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ جا کے بولے دائے حلیمہ کے کان میں، جا کے بولے دائے حلیمہ کے کان میں، اجمیر مکہ جاؤ سرکار آ رہے ہیں، مکہ جاؤ سرکار آ رہے ہیں، مکہ جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، میرے قرآن مقدسہ کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے تحقیق کہ ہمارے پاس اور آپ کے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آیا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے قوم کے غیر مسلمانوں، نور سے مراد کس چیز کو کہا جاتا ہے، نور سے مراد کس چیز کو لیا جاتا ہے، اور روشن کتاب سے مراد کس چیز کو لیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نور سے مراد کوئی دنیا دار نہیں بلکہ احمد مختار ہے، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے پیدا کیا تھا۔ زمین بنی نہیں تھی، اللہ کے نور کو، اللہ کے حبیب کے نور کو بنایا گیا تھا۔ آسمان بنا نہیں تھا، اللہ کے حبیب کے نور کو بنایا تھا۔ یہ چاند سورج نہیں تھا، اللہ کے نور کو بنایا تھا۔ یہ فرش عرش نہیں تھا، اللہ کے حبیب کے نور کو بنایا تھا۔ اور اللہ کے حبیب کے نور کو بنانے کے بعد تب جا کے نور سے آدم کو بنایا، نور سے موسیٰ کو بنایا، نور سے عیسیٰ کو بنایا، نور سے حضرت اسماعیل کو بنایا، نور سے مراد سارے انبیاء کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مصطفیٰ کے نور سے بنایا تھا۔ اور نور سے بنانے کے بعد یہ اعلان کر دیا تھا کہ جاگنا ہے، جاگنا فراق کے ساتھ لے، حسن میں سونا پڑے گا خاک کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نور کی آمد، نور کی آمد، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، بات چل رہی تھی نور کے بارے میں، آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نور کسے کہتے ہیں۔ اب جب نور پہ نظر ڈالا گیا تو معلوم اور پتہ یہ چلا کہ اسی نور سے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا ہے، اسی نور سے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا گیا ہے، اسی نور سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا گیا ہے، اسی نور سے موسیٰ کو پیدا کیا گیا ہے، اسی نور سے 1,24,000 کم و بیش 2 لاکھ انبیاء کرام کو پیدا کیا گیا، اسی نور سے آسمان کو پیدا کیا گیا، اسی نور سے زمین کو پیدا کیا گیا، اسی نور سے عرش کو بنایا گیا، اسی نور سے لوح کو بنایا گیا، اسی نور سے جنت کو بنایا گیا، اسی نور سے جہنم کو بنایا گیا، اسی نور سے پوری کائنات کو پیدا کیا، اسی نور سے محمد مختار کی تخلیق کو کیا گیا۔ تو نور سے
पूछा गया तो नूर के बारे में बताया। अलिफ ने कहा अल्लाह का हबीब आ रहा है, बे ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है, ते ने कहा ताजर मदीना आ रहा है, से ने कहा साकी कौसर आ रहा है, जिन ने कहा जलील कदर आ रहा है ने कहा हबीब खुदा आ रहा है ने कहा खातमुन नबीय्यीन आ रहा है। तो मालूम पता ये चला कुरान में जितने भी अल्फाज है सारा अल्फाज अल्लाह के हबीब की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह के हबीब की तारीफ कर रहा है, अल्लाह के हबीब की तारीफ कर रहा है, अल्लाह के नबी की तारीफ कर रहा है। मालूम पता ये चला समुद्र की मछलियां से पूछा गया ए समुद्र की मछलियां तुम्हें समुद्र की मछलियां में खुशी कहां से मिला? तो समुद्र की मछलियां ने कहा हुजूर की पैदा होने के बाद हमें और आपको मछलियां में खुशहाल पैदा हुआ। अल्लाह के हबीब में हम और आप खुश नसीब है कि इस मर्तबा पहला साल नहीं बल्कि 1500 सालाना जश्न ईद मिलादुल नबी हम और आप मनाएंगे तो इस आदाब में मनाएंगे कि दुनिया के लोग कहे कि ये अहमद मुख्तार की उम्मत ही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। तो हज़रात मोहतरम आज हम और आप मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान का कोई पहचान नहीं है। मुसलमान हमारे अंदर और हमारे अंदर मुसलमान की वो अंदाज नहीं है जिस अंदाज से हजरत सिद्दीक अकबर को पहचाना जाता था, जिस अंदाज से हजरत उमर फारूक को पहचाना जाता था, जिस अंदाज से हजरत अली को पहचाना जाता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आप गूगल और यूट्यूब की शेर और दौरा क्या करते थे? आप रोजाना अखबार को पढ़ा करते थे और आप रोजाना अखबार को पढ़कर अपनी दिल की दुनिया को दुनियावी हर वो मामलात को पहचानते हैं कि कहाँ क्या हुआ है, कहाँ क्या हुआ है, कहाँ क्या हुआ है। तो इसी तरीके से आप गूगल में सर्च कीजिएगा कि माइकल हार्ट किसे कहते हैं। माइकल हार्ट के बारे में आपको जब गौर करेंगे तो माइकल हार्ट आपको बताएगा। और माइकल हार्ट जब सर्च किया तो माइकल हार्ट ने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक तआला ने एक खुदा ने जमीन पर 1 लाख नहीं बल्कि 2 लाख नहीं बल्कि 206 मुल्क को बनाया और 206 मुल्क में 4200 धर्म को बनाया, 4200 मजहब को बनाया। उस 4200 मजहब में अगर कोई मजहब अल्लाह से करीब है तो कोई और नहीं बल्कि मजहब इस्लाम है। उस मजहब इस्लाम हम और आप है। लेकिन मजहब इस्लाम हमारा और आपका है। एक काफिर मजहब इस्लाम की तारीफ कर रहा है लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। आज सुकून पाने के लिए इंसान हर चीज को अपना लेता है। सुकून पाने के लिए इंसान दिल्ली भी पहुंच जाता है। सुकून पाने के लिए इंसान हर वो इलाका ढूंढ देता है जहां सुकून मिलना चाहिए। लेकिन सुकून किसी दौलत के खजाने में नहीं है, सुकून किसी शहर की हवेली में नहीं है, सुकून कहीं बिल्डिंग की कोने में नहीं है, सुकून कन्याकुमारी में नहीं है, सुकून कहीं नहीं है। अगर सुकून कहीं आपको मिलेगा तो वो है नमाज, वो है कुरान की तिलावत। लेकिन सुकून अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो आप किसी कन्याकुमारी की शहर ना करें। सुकून आप ढूंढना चाहते हैं तो दिल्ली की शहर ना करें। सुकून आप ढूंढना चाहते हैं तो आप इधर उधर ना चक्कर लगाएं, बल्कि सुकून आपके घर में मौजूद है जिसे नमाज कहते हैं। सुकून आपके घर में मौजूद है जिसे आप कुरान कहते हैं। लेकिन कुरान को सजाने वाला आज मुसलमान है, कुरान में गल्फ लगाने वाला आज मुसलमान है, मस्जिद को खूबसूरत बनाने वाला आज मुसलमान है, मस्जिद में 4 मीनार लगाने वाला आज मुसलमान है। लेकिन उस मस्जिद के अंदर से सजा देने वाला आज मुसलमान है। लेकिन मस्जिद में जाने वाले आज मुसलमान नहीं हो पाता है। लेकिन मुसलमानों को आज मैं कहना चाहता हूँ ए मेरे कौम के लोगों आज मस्जिद से हम दूर क्यों है? आए मेरे कौम के लोगों आज मस्जिद से दूर होने के बाद हमारा किरदार को खराब कर दिया गया है। हमारे चीज को और वो चीज बदल गया है जिस चीज से हम और आप एक पहचान देते हैं। लेकिन पहचान कहाँ मिलेगा? लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ सुकून आप ढूंढना चाहते हैं तो ये गान और बात में नहीं बल्कि पुराने मुकद्दस के अंदर मौजूद है। लेकिन और सुकून पाने के लिए इंसान क्या नहीं कर लेता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आप कुरान को पढ़ के देखे तो आपको सुकून भी मिलेगा, आपके घर में बरकत भी होगी, आपके घर से बीमारी भी दूर होगी, आपके वो हर वो बड़ा हर वो मुसीबत दूर होगी। आखिर कैसे? तो मैं आपको एक मुस्लिम के कष्ट की बात नहीं बताना चाहता हूँ। मुस्लिम तो कहेगा, ईमान वाला तो कहेगा कि कुरान अच्छा है, एक ईमान वाला कहेगा नमाज अच्छा है। लेकिन इसी चीज को एक काफिर से पूछा गया, इसी चीज को एक काफिर के एक बहुत बड़े साइंसदान है, बहुत बड़े एक इश्तराक है, बहुत बड़े स्टार है जिसकी दुनिया के लोग माइकल जैक्सन से नाम से जानते और पहचानते हैं। माइकल जैक्सन एक बहुत बड़े अधिकार है, बहुत बड़े प्रोफेसर नहीं बल्कि बहुत बड़ा दौलतमंद था। माइकल जैक्सन बहुत बड़े अमीरजाद था। माइकल जैक्सन बहुत बड़े एक अपने आप को महान
समझता था, लेकिन उसके अंदर सुकून नहीं था, उनके अंदर वो सुकून नहीं थी जो सुकून उसको मिलना चाहिए। लेकिन जब वो परेशान थे, जब वो बेकार हो गया था, जब वो परेशान हो गए, जब डर डर के ठोकर खाकर घुमा करता था, तो उससे कोई कहा, ए माइकल जैक्सन, तुम्हें सुकून किसी दुनिया के चौखट में नहीं मिलेगा, सुकून तुम्हें मजहब इस्लाम के अंदर मिलेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम जिंदाबाद मजहब इस्लाम जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। माइकल जैक्सन से पूछा गया, ए माइकल जैक्सन, तुम्हें दौलत तुम्हारे काम नहीं आएगी, सुकून तुम्हें नहीं दे सकता है। तो माइकल जैक्सन ने कहा, आके सुकून कहाँ मिलेगा? मैं अपना सुकून पाने के लिए मैं आधा सल्तनत दे दूंगा, सुकून पाने के लिए मैं सारा धन और दौलत अता कर दूंगा, सुकून पाने के लिए मैं पूरा खजाना लुटा दूंगा, इसलिए कि ये खजाना किस काम का है जो मुझे सुकून नहीं दे सकता है, ये दौलत किस काम का है जो मुझे सुकून नहीं दे सकता है, ये चैन और सुकून दे नहीं सकता है, तो इसे मैं अपने पास रख के क्या करूंगा? तो मुझे सुकून चाहिए। तो मजहब इस्लाम के अंदर सुकून है, और सुकून को किस चीज को कहा जाता है? बल्कि कुरान को कहा जाता है। जब वो कुरान को सुना तो उसको सुकून मिलता हुआ नजर आया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुरान को आप पढ़ा कीजिए। आज जश्न 1500 सालाना ईद मिलाद नबी में हम और आप इसी पैगाम को लेकर उठेंगे कि कुरान और नमाज हमें और आपको अपने शरीर के अंदर पेवस रखना चाहिए, जिसे हमें और आपको हथियार कहा जाए, जिससे हमें और आपको सुकून देता है। लेकिन हज़रात मोहतरम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में आए, और मक्के में आने के बाद मक्के की जो माहौल था वो खराब था, अब से हो गए। आप सुने होंगे उलमाए किराम की ज़ुबान हाल से कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया तो अल्लाह तबारक तआला ने 3 झंडी को लगाया, और 3 झंडी को लगवाया। एक झंडी बैतुल मुक़द्दस के छत पे, दूसरा झंडी हजरत खाना काबा हजरत आमना के दरवाजे पे, और तीसरा झंडी आमना के दरवाजे पे नहीं बल्कि खाना काबा के छत पे। आखिर इन तीनों झंडी का आखिर पैगाम क्या देता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हुजूर से पहले जब हुजूर दुनिया में नहीं आते तो औरतों को बेइज्जत कहकर घर से बाहर निकाला जाता था। औरतों के अंदर से, औरतों को अगर कोई विधवा हो जाता था, विधवा होकर अपने वक्त को गुजारती थी तो उनको बेनजर और बुरी नजर से देखा करता था। लेकिन अगर मक्के मुअज़्ज़मा में अगर कोई लड़की बेटी पैदा हो जाता था तो उस बेटी को जिंदा दफन किया करता था। तो इसलिए खाना काबा के ऊपर झंडी को लगाया गया, और लगाने के बाद ये पैगाम दिया गया, अब वो औरत एक आसानी जिंदगी गुजारेगी। जो औरत को विधवा बनकर जिया करती थी, अब औरत एक सुकून की जिंदगी गुजारेगा। अब बच्ची को दफन नहीं किया जाएगा बल्कि रहमतुल लिल आलमीन पैदा हो गए। तो हज़रात मोहतरम, ये 1500 सालाना जश्न ईद मिलाद नबी में हम और आप बैठे हैं। इंशाअल्लाह तबारक तआला कल हम आप बेहतरीन तरीके से निकालेंगे, इसलिए कि आपको खुशी होना चाहिए, इसलिए कि आप कभी नहीं सुने थे, कभी मनाए थे कि 1400 सालाना जश्न ईद मिलाद नबी। इस मरतबा हमें और आपको मौका मिला है 1500 सालाना जश्न ईद मिलाद नबी में, तो ऐसा काम ना करें जिस काम की वजह से हमारे दीन, हमारे शरीयत पे एक आँच आ जाए, एक दाग लग जाए। इसलिए जब आप कल निकलेंगे ना तो आपकी किरदार से महक आए, आपकी बातों से खुशबू आए, आपकी चेहरों को देखकर मुस्तफ़ा की वो अंदाज मालूम चले, और आप जब चले ना तो ऐसा लगे जब मुस्तफ़ा का गुलाम ऐसा चल रहा है तो आका करीम कैसे चला करते थे। इसलिए कि जैसे ही आका करीम गलियों से चला करते थे तो आका करीम की गलियों से चलने के बाद कंकर भी मेरे आका के ऊपर सलाम पढ़ा करते थे, पत्थर भी आका के ऊपर सलाम पढ़ा करते थे, हर वो चीज आका करीम के ऊपर सलाम पढ़ा करते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे कौम के भाइयों और मुसलमानों, उसी उम्मती में हम पैदा हुए हैं, उसी उम्मती के अंदर आका करीम की शरीयत के अंदर आज शराब पीना हराम है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते कल आप शराब ना पीजिए, और कल खुदा के वास्ते शराब को हाथ ना लगाए, इसलिए कि शराब को शरीयत में मना है। लेकिन आज जगह जगह से ये ऐलान किया जा रहा है, जगह जगह पर ये बात को रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट में चाहे किसी भी कोर्ट में, कि 5 सितंबर को आज शराब की दुकान पे ताला लगना चाहिए। लेकिन ताला क्यों लगाया गया मेरे कौम के लोगों? ताला तो पहले से लगा हुआ है, इसलिए कि माइकल जैक्सन नहीं, माइकल हार्ट ने कहा था कि दुनिया में एक ऐसा मजहब होगा, दुनिया में एक ऐसा धर्म होगा जिस धर्म के अंदर शराब पीना हराम होगा, जिस धर्म
دار نہیں کہتا ہے، بلکہ اس قانون کو احمد مختار کہتے ہیں، اس قانون پہ چلنے والے مصطفیٰ کا غلام کہتے ہیں، اس قانون پہ رہنے والے مومن کہتے ہیں، جسے ہم جیسے گنہگار بندو۔ حضرات محترم، کل 1500 سالانہ جشن عید میلاد النبی بھی ہم اور آپ وقت گزاریں گے، نکلیں گے تو ایسا لگے کہ مصطفیٰ کی امت ہی نکلا ہے، اور ہمیں اور آپ کو دیکھ کر ایک پیغام لے، لوگ ایک سبق لے، اس لیے کہ ہم امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اور سکون دینا بھی چاہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جب نکلیں گے تو پان گٹکا یہ سب نہ کھا کر نکلے، بلکہ زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، اور درود شریف ہو، صلاۃ والسلام ہو، آپ کی قیدا سے، آپ کی زبان سے ایسا لگے کہ یہ شرابی کا منہ نہیں بلکہ مصطفیٰ کا غلام کا منہ ہے، یہ کوئی چمار چمارین کا منہ نہیں بلکہ مصطفیٰ کی امتی کا غلام ہے۔ اس لیے کہ اسی منہ سے ہم نعرے تکبیر کا آواز دیں گے، نعرے تکبیر لگائیں گے۔ ہم اور آپ مل کر پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔